1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रेवलेशन 7 चैप्टर, आमोस 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यहोवे, धन्यवाद करते हैं यहोवे, धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस बाइबल रीडिंग में पवित्र आत्मा हम में सहायता भर, अपनी ताकत भर, अपनी शक्ति भर, और हम तेरे वचन को अच्छे से सीख पाए, समझ पाए और आगे बढ़ पाए, ऐसा होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। रेवलेशन चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। द सर्वेंट्स ऑफ गॉड सील्ड एक्सेट्रा, फर्स्ट वर्स है। एंड आफ्टर दिस थिंग्स I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. Of the tribe of Asher were sealed 12,000. Of the tribe of Naphtali were sealed 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000. Of the tribe of Issachar were sealed 12,000. Of the tribe of Zabulon were sealed 12,000. Of the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin were sealed 12,000. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the 4 beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them. And
shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Chapter 8. The प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पहले वचन से। इस्राएल के 1,44,000 लोग, 1,44,000 लोग। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शिया के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसक्कार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। एक बड़ी भीड़। 9 वचन से आगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसके सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। पवित्र आत्मा, आप इतने ओपनली हमारे साथ वचन सीखने के लिए हमारे में मौजूद है। जब हम जानते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे अंदर मौजूद रहने के लिए। आप हमारी शक्ति बनते हो, बल बनते हो, हमें सामना करने के लिए हमारे अंदर का हियाव आप बनते हो। आप हमारी ताकत बनते हो। आप हमारे अंदर से खुल जाते हो। आप हमारा जीवन बदलने में हमारी सहायता करते हो। परमेश्वर चाहता है उस दिशा में मुड़ जाने के लिए हमारी मदद करते हो। पवित्र आत्मा, आपको कोई मार नहीं सकता है।
आपको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपके अंदर सब कुछ सुरक्षित है। यही वचन भजन संहिता के 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आप वो छाया हुआ स्थान है पवित्र आत्मा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके छाए हुए स्थान में हम आ चुके हैं और अब हम परमेश्वर आप ही के अंदर विश्राम में है। खुदा मेरे पिता, हमारे ऊपर आपका छाया है। पवित्र आत्मा, हमारे ऊपर आपका छाया है। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और हमारा सब कुछ जो भी इस पृथ्वी के ऊपर हम जीते हैं, आप ही छाए हुए हो हमारे ऊपर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो हमारे ऊपर छाया हुआ है वो मजबूत और बलवंत है। हमारे सारी बातों का वही हमारे लिए इलाज है। थैंक यू फादर गॉड। इस समय पवित्र आत्मा हम विनती करते, इन वचनों के आधार से हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।